नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रयागराज में शास्त्री ब्रिज के सेक्टर 19 के कैंप में लगी भीषण आग। संभल मामले में 10 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू हुआ, पीएम नेतन्याहू का ऐलान। शेफ केस में हमलावर को लेकर बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची मुंबई पुलिस। राहुल गांधी ने शुरू किया व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट, युवाओं से की बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। हुबली में विधायक महेश तेनगिनकाई ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार के पास राज्य के विकास पर ध्यान देने का समय नहीं है और वह गुटिया राजनीति में उलझी हुई है। आगे उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सन्मान्य गृह सचिवरागली उಳಿದ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಳ ಜಗಳದ ಬೇಗುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಾಜಕತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಸ್ಸಂಬರಿತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇದಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಕ್ಷದೊಳಗಿಂದ ಫೈಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿಂದ ಫೈಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಲ್ಲ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಇಲಾಖೆನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಳ್ಳೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಭಾಳ ಗುದ್ದಾಟ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ಅವರ ಸೀಟ್ ಸಲುವಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಆಂತರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡಿದಾಗ ದಿನನಿತ್ಯ ಇದೇ ಜಗಳದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾಗತ್ತೆ ವಿನಃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಖೇದಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಲಿ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಒಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಂತರಿಕ ಕಚ್ಚಾಟದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇವತ್ತು ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ವಿ. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಯಾರ್ದೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಯಾವ ಅಜೆಂಡಾ ಇಲ್ಲ. अहमदाबाद ग्राम्य एलसीबी पुलिस ने बावला पुलिस स्टेशन क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब की 591 बोतलें जब्त की। जानकारी के अनुसार साड़ा चौकरी के पास एक क्रेटा कार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 4 लाख से अधिक मूल्य की शराब और 9,15,126 रुपए का मुद्दा माल जब्त किया। बता दें, ये शराब राजस्थान से लाई जा रही थी। हरियाणा के जिंद में सरकारी अस्पताल में व्हीलचेयर और स्ट्रेचर की स्थिति बेहद खराब है। अस्पताल में रोजाना 2000 ओपीडी होते हैं, लेकिन मरीजों के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं है। वहीं कुछ व्हीलचेयर खराब हालत में हैं। एक मरीज के परिजन ने बताया कि वे मरीज को खराब व्हीलचेयर पर ले गए, जिससे रास्ते में ही उसका पहिया टूट गया। डायलिसिस सेंटर के मैनेजर ने भी व्हीलचेयर की कमी की शिकायत की है। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों ने आदेश जारी कर कहा कि व्हीलचेयर और स्ट्रेचर का प्रयोग केवल मरीजों के लिए किया जाएगा, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उसमें जो है वो डायलिसिस का मामला था कि डायलिसिस वाले उसको व्हीलचेयर को इस्तेमाल कर रहे थे और वो सामान ढोने के लिए जो है बात हमारे सामने आई थी। हम लोगों ने अपनी तरफ से जो है वो डायलिसिस सेंटर को पत्र भी लिखा और उनका जवाब भी आया कि हम लोग अपनी व्हीलचेयर पेशेंट केयर को लेकर के यूज करते हैं और यदि इस तरह का कोई मामला था, उनके एम्प्लॉय अगर इसको इस्तेमाल कर रहे थे तो वो उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। और भविष्य में हमने उनको चेतावनी दी है कि सामान ढोने के लिए भले ही वो व्हीलचेयर हमारी हो या डायलिसिस सेंटर की हो, वो पेशेंट केयर के लिए कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ना कि सामान के लिए।
हमारी डायलिसिस सेंटर की 2 चेयर हैं जो हमें अलॉट हो रखी है हमारे एचओ की तरफ से, दिल्ली हेड ऑफिस है हमारा। तो पूरे हॉस्पिटल में हमारी ही व्हील चेयर घूम रही है जो डीसी किडनी केयर की है। और जो हमारे पेशेंट है वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि वो कहाँ से लाए। और जब सरकारी जो पेशेंट लेके जाते हैं अदर वार्ड में, मेडिकल बोर्ड में या कहीं भी सर्जिकल में, तब उनसे हमारा हाउसकीपिंग मांगने जाता है तो वो लड़ाई करते हैं। तो पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है, सारी हमारे से घूम रही है। ये दिक्कत है व्हील चेयर। तो कुछ व्हील चेयर पर जो सामान ढोया जा रहा है वो तो नीचे आप स्टाफ को पकड़ो कि कहाँ का स्टाफ है, क्योंकि हमारा स्टाफ तो यहीं है। जो व्हील चेयर पे ढो कर रहा है वो तो गवर्नमेंट का स्टाफ है, हमारा तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस स्टाफ है। क्योंकि वो जो स्टाफ है वो यहाँ से ले जाता है या पेशेंट लेके जाते हैं, वो दे के नहीं जाते वापस। चाहे उनका मोबाइल रखो, आधार कार्ड रखो, हमारे पेशेंट सारे हैं वो दे के जाते हैं। लेकिन अदर पेशेंट है वो ले जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं देते। और जब हमारा स्टाफ मांगने जाता है उनसे व्हील चेयर कि ये हमारे यूनिट की है, कि हमारे पेशेंट को बहुत दिक्कत हो रही है, तो वो इनसे लड़ाइयाँ करते हैं। चाहे वो सर्जिकल बोर्ड, और सर्जिकल बोर्ड वाले जो स्टाफ है वो रख लेते हैं, वो भी नहीं देते, बोलते हैं कि ये हमारी व्हील चेयर है। जबकि डायलिसिस में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ के पेशेंटों को कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा है। सरकारी मेडिकल से हमें कोई व्हील चेयर नहीं है, हमारी है प्राइवेट है। और यहीं से प्राइवेट वाली भी बाहर जाती है, जो यहाँ से ले जाते हैं वो वापिस नहीं छोड़ते। यहाँ सबको दिक्कत है पेशेंट को, यहाँ ले आने में भी ले जाने में भी ऐसी सुविधा होती है। कुछ क्या करें, आपने देखा होगा कैसे आ रहे हैं पेशेंट, इस पर लेटा के लेते हैं कैसे लेटा के ले आएंगे। और जैसे बुजुर्ग है जो अपने आप आ सकते, वो तो नहीं मालूम वो किसकी है। हमारे वो व्हील चेयर हमारे भी नहीं मिल रहे ना, जो हमारी इसकी है ना, जो डायलिसिस सेंटर की है, उस व्हील चेयर को भी नीचे को यूज कर रहे हैं। हमने हमारी तो गलती नहीं है, जहाँ हमारी तो लड़ाई होती है, अगर लेने जाते हैं ना तो वो देते नहीं दूसरे। खबर जिंद से है, जहां बाजार में अतिक्रमण पर डिप्टी स्पीकर का डॉक्टर कृष्णा मिडा ने कहा कि अतिक्रमण से आम जनता को परेशानी होती है और इससे बाजार में ग्राहकों की कमी होती है। आगे उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अतिक्रमण की बड़ी दिक्कतें आ रही है बाजार में, मेन बाजार में। देखिए, इन सबको अपने आप को समझना पड़ेगा। बाजार में अतिक्रमण नहीं रहेगा तो आप ये मान के चलिए कि बाजार में ग्राहक ज्यादा आएगा। नहीं तो आज ग्राहक है जो वो बाहर की बाहर ही रह जाता है। एक सीमा तय कर देंगे, मतलब एक पॉइंट रख देंगे, कलर सेट कर देंगे, उसके बाद कोई भी उससे बाहर नहीं आएगा। ऐसी पूरे शहर में करने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जींद हमारा है। हम जींद के सभी लोग, जींद वासियों से मैं निवेदन भी करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा कि सभी लोग सहयोग करें, जींद को सुंदर बनाने में सहयोग करें। हम लोग निरंतर इस बार जींद को सुंदर बनाने का प्रयास है और आप देख रहे हैं कि जींद में हम वाल टू वाल भी करने का काम करें। और आज पटियाला चौक से लेकर पिंडारा तक सारी सड़क को वाल टू वाल किया जा रहा है। इसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक अकेला इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। ये झोपड़ी बने हैं, इनको हटाया कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। ऐसे नहीं किसी गरीब आदमी को परेशान नहीं किया जाएगा, उसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। क्योंकि गरीब व्यक्ति एक ही बात सोचा कि कम से कम मिड्डा परिवार तो ऐसा नहीं करेगा। हमारी भी सोच रहेगी कि इनका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, शहर भी सुंदर हो जाए और इनके लिए कोई रास्ता भी निकल जाए। टाउन हॉल पे वो कॉम्प्लेक्स भी बन के तैयार हो गया, तो उसके लिए हाँ, उसके लिए अभी मीटिंग हम लोगों ने की है, दोबारा फिर करेंगे, उसका कोई ना कोई हल निकालेंगे, उसको सेल आउट करेंगे या जैसा भी होगा कोई भी प्रोसेस निकाल के करेंगे जिससे उसका भी कोई ना कोई हल निकले। जी, मोहनलाल बरोली पे फिर डिस्प्ले विपक्ष हमला पर बार बार। देखिए, विपक्ष क्या कह रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए उसके ऐसा कुछ तथ्य सामने स्पष्ट से नजर नहीं आ रहे। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं जी बीजेपी के नेताओं से बेटी को बचाने की जरूरत है, पहले बेटी को बचाओ बेटी पढ़ाओ बनाना देती है बीजेपी। वो पहले हर व्यक्ति अपने गिरेबान में झांक के ज्यादा बेहतर। खबरों का सिलसिला आगे जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लिव इन में रह रही महिला की हत्या का मामला आया सामने। पुलिस ने अधिवक्ता गिरजा शंकर पाल को किया गिरफ्तार। आरोपी अधिवक्ता ने सुनसान रास्ते पर गाड़ी चढ़ाकर की थी हत्या। आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल सफारी कार हुई बरामद। दोनों के बीच रुपयों और शादी को लेकर चल रहा था विवाद। पीजीआई थाना क्षेत्र स्थित वृंदावन के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के पास का मामला। महिला की हत्या करके सड़क किनारे फेंकने का जो मामला सामने आया था, उसमें क्या कुछ पूरी जो गिरफ्तारी है, कौन लोग हैं? ये दिनांक 17/1/2025 को थाना पीजीआई के थाना वृंदावन चौकी वृंदावन क्षेत्र में एक महिला का शव बरामद हुआ था, जो कुछ संदिग्ध हालत में प्रतीत हो रहा था, जिसके आधार पर फिर पुलिस ने अपनी विवेचना करनी शुरू करी और अभियोग पंजीकृत किया, हत्या का अभियोग पंजीकृत किया। और फिर जो अपनी पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि इस जो मृतका है इनके साथ एक गिरजा शंकर पाल है, जो कि रायबरेली के ही रहने वाले हैं। मृतका जहाँ की रहने वाली है, ये वहीं के रहने वाले हैं और इनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। पिछले काफ़ी महीनों से या 1 साल से आसपास से इनके बीच विवाद चल रहा है, चूँकि महिला ये जो अभियुक्त है शादीशुदा है और महिला इसके पे शादी का दबाव बना रही थी, प्लस कुछ लेन देन का विवाद भी था और इसी बीच इनके पास अक्सर विवाद हुआ करता था, जो बात प्रकाश में आई है। घटना के दिन इनको मृतका को बहुत ही चालाकी से और पहले साजिश के तहत अपनी गाड़ी में, जो इनके सफारी का कार है अभियुक्त की, उनके नाम से ही है, अपनी कार में बैठा कर लेके गए और घुमाते रहे और बहला फुसलाकर उसको कार से उतार दिया और कार से 2 बार हिट करके उनकी हत्या की। और हत्या करने के बाद ये रायबरेली फरार हो गए, एक होटल में जाके रुके हुए थे। पूरी सीसीटीवी फुटेज, घटना से संबंधित सारी सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की हेल्प ली गई है और बाकी इसका अनावरण किया गया है। एक्यूज्ड जो है वो पेशे से क्या है? एक्यूज्ड अभी जो बताया इन्होंने कि पेशे से कहीं वकालत करते हैं, इट्स नॉट एट प्रूफ, अभी प्रूफ नहीं है ये बात, लेकिन ये बताया गया कि हाँ ये पेशे से वकालत करते हैं और इन पे जो देखा गया कुछ पहले से 4-5 मुकदमे भी है। जिस तरीके से मृतका के भाई ने आरोप लगाया था कि 10 वर्षों से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, लेकिन इस दौरान उसको काफ़ी प्रताड़ित किया था, रुपए जो वसूलने की बात की जाए लाखों रुपए भी उससे ऐंठे गए थे। हाँ, ये बात आई, दोनों के बीच विवाद थी, ये बात आई है। इस बात को अभियुक्त ने भी स्वीकारा है कि हाँ विवाद होते थे और वो बेसिकली पैसे के विवाद और शादी के दबाव करने को लेके विवाद होता रहता था इनके बीच में। ये ऐसा बताया गया कि जो अभियुक्त है इससे लड़ाई झगड़ा करती थी, वो अक्सर कुछ इनको भला बुरा कहती थी, क्योंकि इनकी बात नहीं सुनते थे, शादी की बात कहने पे टरका देते थे, वो कुछ भला बुरा कहते थे, तो वो मृतका भी इनको कुछ सुनाती थी, जैसा अभियुक्त ने इस बात को अपने बयान में भी स्वीकारा है कि हाँ ये ऐसी बात कहती है। इसका आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, इनके आपराधिक इतिहास है। लखनऊ और रायबरेली में कुछ 4-5 मुकदमे पहले से हैं और मुकदमों की थाना कृष्णनगर में गैंगस्टर की कार्रवाई हुई, क्या किस मामले में गया था वहाँ पर कृष्णनगर? एक मारपीट और हत्या का मामला हुआ था, जिसके गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी 17 में। इसके बारे में और डिटेल खंगाली जा रही है। दून पुलिस ने ड्रग फ्री देवभूमि 2025 अभियान के तहत सैलाकुई क्षेत्र में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 आरोपियों को 15 लाख रुपए के अनुमानित कीमत की 49 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी सहारनपुर और पीलीभीत के रहने वाले हैं और स्मैक को बदायूं से यूसुफ के प्राप्त कर औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों और छात्रों को बेचने की योजना बना रहे थे। वहीं आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगामी 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन उत्तराखंड में होने जा रहा है, जिसमें अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रदेश के अलग अलग जगहों पर हो रहा है। इन्हीं में से 2 फरवरी से लक्ष्मण झूला क्षेत्र अंतर्गत फूल चट्टी से सलालम प्रतियोगिता का आयोजन होना प्रस्तावित है। इसके दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह द्वारा स्वयं फूल चट्टी पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ पार्किंग, यातायात व्यवस्था आदि का जायजा लेकर अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों और अन्य विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पीटीसी राजन सिंह, क्षेत्र अधिकारी तुषार बोरा, प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण झूला रवि सैनी सहित खेल विभाग और इवेंट कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे।
उत्तराखंड के खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नगर पालिका परिषद चुनाव में भाजपा अध्यक्ष पद प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी के समर्थन में रविवार को भव्य रोड शो किया। इस दौरान भारी जनसैलाब उमड़ा और स्थानीय जनता ने सीएम का पुष्प मालाओं से स्वागत किया। रोड शो के बाद रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में सीएम धामी ने क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा को समर्थन मिलने पर विकास की गारंटी है और प्रदेश को नए पायदान पर स्थापित किया जाएगा। उन्होंने जनता से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। कार्यकर्ता भी रहे हैं, समाज सेवक भी रहे हैं, इनके यहाँ चेयरमैन बनने से यहाँ का विकास तेज गति से होगा। यहाँ एक आदर्श नगर पालिका बनेगी, साफ सुथरी बनेगी, ड्रेनेज का सिस्टम बनेगा, सीवर लाइटें बनेगी, अनेक प्रकार की लाइटें लगेंगी, इन सभी पर काम होगा। और निश्चित रूप से मेरी भी कर्म यही रही है, तो मैं भी उनके साथ पूरी तरह से यहाँ के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।